हेलो रोशन. हाँ सर, स्टार्ट के लिए. Okay. Okay, see student, today we are starting with the next heading, that is electrochemical series, which is also called as electromotive series. So either you can call as a electrochemical series or you can call it as a electromotive series. Now what is the meaning of this series? See here, first I'll write down the meaning here. The electrodes and their half reactions are arranged according to their decreasing standard potential are called as electrochemical series or electromotive series. See here, what is definition? The electrode, हमारे पास अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स है. Electrode and their half reaction are arranged according to their decreasing standard potential. Means अगर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के हाफ रिएक्शंस हमने अरेंज कर दिए according to their decreasing standard potential, then they are called as a electrochemical series or they are called as a electromotive series. They are called as a electrochemical series or they are called as a electromotive series. I'll take the example here. See here, we are having different electrode, like for example fluorine, we write as what? F, in contact with F2, in contact with platinum. ये हमारा फ्लोरीन इलेक्ट्रोड है और फ्लोरीन इलेक्ट्रोड का हाफ रिएक्शन क्या होगा? F2 plus 2 electron gives you F minus. Okay, ये हमारा हाफ रिएक्शन है. So here I have first column, I have written the electrode. Second column I have written here their half reaction, and the last column I have written the standard potential in volt. So first column we are having the electrode, second column we are having their electrode half reaction, and in the last column we are having their potential. Electrode half reaction and potential. This is one electrode. Second electrode I will take it over here as suppose I write the second electrode as here Ag plus Ag, and here we get Ag plus 1 electron gives you Ag. And see here the potential is plus 2.87 volt. Here the potential is plus 0.799 volt. I will take one more here. Copper 2 plus in contact with copper is 1 electrode, and half reaction copper 2 plus 2 electron gives you copper. Potential is plus 0.337 volt. Then I will write here hydrogen. Half reaction is 2H plus
plus 2 electron gives you H2 and potential is 0.0 volt. Then here I will write the like Ni2 plus in contact with Ni. Half reaction is Ni2 plus 2 electron gives you Ni and the potential is minus 0.257. Next I will write here as ion Fe2 plus in contact with Fe. Potential is minus 0.44 volt. And I'll just write down the last here, that is lithium this is the one complete table. Okay, so ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, we call this as what? Electrochemical series. Electrochemical series क्यों? देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स लिखे, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स लिखे. मिडल कॉलम में उनका क्या लिखा हुआ है, हाफ रिएक्शन, बिकॉज दे विल अंडरगो व्हिच रिएक्शन? रिडक्शन. Fluorine undergoes reduction, silver ion undergoes reduction, so they all are reduction reaction. Because we know that according to IUPAC nomenclature, अगर हमें कोई भी हाफ सेल दिया रहेगा तो हाफ सेल के लिए हम कौन सा रिएक्शन लिख सकते हैं? रिडक्शन रिएक्शन. और इस रिडक्शन रिएक्शन का ही रिडक्शन पोटेंशियल है. ओके, सो व्हेन ऑल इलेक्ट्रोड and their half reactions are arranged in the decreasing order of their potential are called as a electrochemical series. देखो यहाँ पे potential 2.87 है, बाद में 0.799 है, 0.337 है, 0.0 है, minus 0.257, minus 0.44 और decrease हो रहा है. मतलब all the electrode, yes, and their half reaction, all the electrode and their half reactions are arranged in the decreasing order of their standard potential are called as a electrochemical series or called as a electromotive series. Okay, so what is the definition? When the electrode and their half reactions are arranged according to their decreasing standard potential, then the series obtained are called as what? Electrochemical series, or it can be also called as what? Electromotive series. तो ये हमारा सीरीज है. ओके, जहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलम में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स है, नेक्स्ट कॉलम में सबका रिडक्शन रिएक्शन लिखा हुआ है, और लास्ट कॉलम में उनके पोटेंशियल है. बट पोटेंशियल्स आर इन द विच ऑर्डर? द पोटेंशियल आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. एंड विच पोटेंशियल वी आर टॉकिंग अबाउट? रिडक्शन. हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं. करेक्ट. अभी नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट हियर. the key point we have to remember here for the series. So you can say here key points of electrochemical series. Now what are the key points of electrochemical series? The very first point, the very first time, the half reaction are written as reduction. मतलब देखो, जब भी आप आपको कोई भी इलेक्ट्रोड दिया रहेगा, लेकिन जब आप हाफ रिएक्शन लिखोगे तो कंपल्सरी वो हाफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? रिडक्शन ही होना चाहिए. तो ऑलवेज रिमेंबर हियर द हाफ रिएक्शन आर रिटर्न एज ऑलवेज रिडक्शन. मतलब जब जो भी हाफ रिएक्शन लिखोगे आपका हाफ रिएक्शन कंपल्सरी रिडक्शन का ही होगा. करेक्ट. सेकेंड पॉइंट,
और इसमें मैं और एक पॉइंट करूंगा ऐड, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and electron appear on the left hand side of half reactions. देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इलेक्ट्रॉन. अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है? तो अगर आपको याद रहेगा लास्ट ईयर का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, देखो Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है. Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है. क्यों रिडक्शन हो रहा है? बिकॉज Ag प्लस इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन. और जो भी सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद का रिडक्शन करवाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिमिलरली हियर, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब कॉपर का रिएक्शन कौन सा हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. और अगर कॉपर का रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है मतलब कॉपर 2 प्लस विच एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमेशा ध्यान में रखना, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन रिएक्शन होगा, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन रिएक्शन होगा, करेक्ट, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन रिएक्शन होगा उस सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है मतलब कॉपर 2 प्लस कैन बी कॉल्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है H प्लस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो और तो व्हाट आई वांट टू से कि हम लोग जो हाफ रिएक्शन लिखेंगे उस हाफ रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इलेक्ट्रॉन. सो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and the electron will appear on the left hand side of the half reaction. On the left hand side of the half reaction. तो ये अगर हमारा हाफ रिएक्शन है तो हाफ रिएक्शन के लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. ओके. while the reducing agents are shown on the right side in the half reaction. देखो, रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कैसे मालूम है? आप देखो, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, अगर आप सिंपल देखो यहाँ पे कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर, ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन. क्योंकि कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है. लेकिन अगर मैंने इस रिएक्शन को ऐसे रीड कर दिया, रिवर्स रीड किया, तो कॉपर गिव्स यू कॉपर 2 प्लस, कॉपर गिव्स यू कॉपर 2 प्लस, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन है तो रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो ये अगर मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये अगर मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो कॉपर कैन बी कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. कॉपर कैन बी कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब अगर मैं इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा हूं तो इसे मुझे क्या बोलना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट. ये सब, ये मतलब राइट साइड में जो भी है उन्हें हमें क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. ओके. सो व्हाट दे वांट टू से कि रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास है, दे आर शोन ऑन द राइट साइड इन द हाफ रिएक्शन. ओके. तो व्हाट वी हैव सीन हियर, सबसे पहले अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रोड दिया रहेगा तो उस इलेक्ट्रोड के लिए क्या लिखना है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है. रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखने के बाद जो लेफ्ट साइड में आएंगे उसे क्या बोलोगे? जो स्पीसीज लेफ्ट साइड में आएगा उसे, उसका रिडक्शन हो रहा है मतलब कौन सा एजेंट रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब ऑल F2, Ag प्लस, copper 2 plus, they all are oxidizing agent. So oxidizing agent are on the left side of the half reaction and reducing agent मतलब fluorine, silver, copper, they are on the right side of the half reaction. ये concept clear करो. लेकिन अगर आप easily
अगर आप इजीली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कैसे ध्यान में रखना है, जिसका रिडक्शन होगा, अभी यहाँ पे रिडक्शन पता चलता है कि Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब Ag प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो Ag प्लस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये Ag अगर ऐसे रिवर्स करूंगा तो Ag इज गिविंग Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कौन सा रिएजेंट रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो सिंपल बात क्या ध्यान में रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रहा है ध्यान में, जिस एलिमेंट का रिडक्शन होगा, जिस एलिमेंट का रिडक्शन होगा वी कॉल दैट स्पीसीज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे क्या बोलोगे आप, रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and electron are on the left side of the half reaction and reducing agent are on the right side of the half reaction. ये हमारा first point है. Okay, now I'll go for the second point. Second point here, below hydrogen electrode, below hydrogen electrode the negative standard potential increases and above hydrogen electrode the positive standard potential increases. See here, what is the meaning of this? अगर अब मैं आपके सामने अगर सीरीज रखूंगा, सीरीज, ये हमारा सीरीज है, देखो ये अलग अलग एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स है, मिडिल कॉलम में उनके हाफ रिएक्शन दिए हुए हैं और लास्ट कॉलम उनके पोटेंशियल दिए। तो इफ यू जस्ट मेक इट हियर कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0.0 है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0.0 मतलब हाइड्रोजन इज एट द सेंटर। तो ऐसा अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीज, ओके। और अगर मैं नीचे आऊंगा तो क्या हो रहा है, नीचे आने के बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव, हाँ अगर मैं उड़ूंगा नीचे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ये क्योंकि ये 0.126 है, ये माइनस 0.136 है, ये माइनस 0.24 है। तो एक्चुअली अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो अगर इफ आई गो डाउन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन उन्होंने क्या किया है, खाली स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला है, नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो इसलिए उन्होंने वर्ड क्या लिखा है, नेगेटिव स्टैंडर्ड, मतलब उन्होंने माइनस साइन का भी मतलब कंसिडर कर दिया है। तो इसलिए उनका क्या हो रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीज, नेगेटिव पोटेंशियल गोज ऑन। हाँ, अगर उन्होंने नेगेटिव वर्ड नहीं यूज किया होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बिलो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन उन्होंने वहां पे वर्डिंग में क्या वर्ड यूज किया है, नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया है, और उन्हें नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि बिलो हाइड्रोजन नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है, और अबो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड पॉजिटिव पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग, okay, so that is the sentence they have given here. So what is second point of the electrochemical series, all those elements which are below hydrogen, okay, below hydrogen, first thing is what, they are having negative standard potential and the value goes on increasing, मतलब below hydrogen जो भी elements है उनका standard potential negative है, and as we go down it is increases, and above hydrogen electrode जो elements है they are having positive potential and above it goes on increasing. So upward side
positive potential goes on increasing, and in the downward side negative potential goes on increasing. आ रहा है समझ में? अगर एटलीस्ट इतना नहीं तो इतना एक बात ध्यान में रखना कि जो एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन है उनका पोटेंशियल नेगेटिव है और जो एलिमेंट अबव हाइड्रोजन है उनका पोटेंशियल पॉजिटिव है. ओके, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो. थर्ड पॉइंट, given E0 value, apply to the reduction. Given E0 value, apply to the reduction half reaction that occur in the forward direction as written. See here, the given E0 value. Given E0 value, I'll just write down the reaction. Ag plus accept one electron and gives you Ag. For this reaction, the E0 value is, for this reaction, the given E0 value is plus 0.799 volt. Okay, Ag plus accept electron and Ag value is how much? 0.799 volt. So what is the meaning of that? कि हमारे इस half reaction के लिए ये हमारा E0 value है. तो given E0 value apply, मतलब हमें जो यहाँ पे जो E0 value दिया हुआ है, that given E0 value is applicable to the reduction half reaction. This E0 value is applicable to this half reaction, provided that if it occurs in the which direction? Forward direction. Please mute yourself. So here given E0 value, मतलब यहाँ पे देखो ये हाफ रिएक्शंस है, हाफ रिएक्शन के लिए ये E0 वैल्यू दिया है. तो ये जो मैंने E0 वैल्यू लिखा है किसके लिए एप्लीकेबल है? Only if the half reaction occurs in the which direction? Only if the half reaction occurs in the forward direction. मतलब अगर हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये वैल्यू एप्लीकेबल है, रिवर्स में नहीं. मतलब अगर मैं बोलूंगा Ag plus accept one electron and give Ag, then standard potential is 0.799, correct. लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूंगा कि Ag gives Ag plus an electron, then no, it is not correct. मतलब हाफ रिएक्शन के सामने जो E0 वैल्यू लिखा रहेगा वो खाली कौन से डायरेक्शन में एप्लीकेबल रहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ओके, suppose I write the reaction here. Suppose I'll take one more example. Copper 2 plus 2 electron gives you copper, and E0 value of the copper is 0.337 volt. ये इसका मतलब क्या हुआ? Given E0 value, ये हमारा E0 value दिया हुआ है इस हाफ रिएक्शन के लिए, करेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ है? This value is applicable if we consider which reaction? Forward reaction. फॉरवर्ड मतलब कॉपर 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अगर हमें कॉपर मिलेगा तो उसका पोटेंशियल कितना रहेगा? 0.337. तो गिवन हाफ E0 वैल्यू is applicable if the reaction occurs in the which direction? Forward direction. Okay, next point. Fourth, higher E0 value for a half reaction, higher E0 value for a half reaction greater is the tendency to occur in the forward direction. Greater is a tendency to occur in the forward direction
and in turn greater the tendency of the substance to get reduce. देखो मैं यहाँ पे वापस बताता हूँ. देखो मेरे पास दो हाफ रिएक्शंस है. इसमें से फर्स्ट का E0 वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.799 और सेकंड का E0 वैल्यू कितना दिया है 0.337. सो व्हाट आई एम सेइंग, हायर द E0 वैल्यू फॉर अ हाफ रिएक्शन. मतलब अगर कोई हाफ रिएक्शन के लिए E0 वैल्यू अगर हायर रहेगा देन ग्रेटर द टेंडेंसी टू ऑकर इन द वी डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब अगर मुझे बोलेगा कि ये दो रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होगा, दो रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट चला जाएगा, तो जिसका E0 वैल्यू हायर है, जिसका E0 वैल्यू हायर है. तो किसका E0 वैल्यू हायर है, सिल्वर का. द E0 वैल्यू ऑफ द सिल्वर इज हायर, देयरफॉर सिल्वर Ag प्लस विल अंडरगो रिडक्शन वेरी इजीली. इसीलिए मतलब देयरफॉर इन टर्न ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस. मतलब उस सब्सटेंस का रिडक्शन इजीली होगा. दोनों का मतलब एक ही हुआ. जिस हाफ रिएक्शन के लिए E0 का वैल्यू हायर है, जिस हाफ रिएक्शन के लिए E0 का वैल्यू हायर है, दैट रिएक्शन विल प्रोसीड मोर इन द वी डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब दैट रिएक्शन और दैट सब्सटेंस हैज अ मोर टेंडेंसी टू अंडरगो व्हिच रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और इट हैज गेट रिड्यूस. मतलब जिसका E0 वैल्यू हायर रहेगा वो सब्सटेंस इजीली उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा. करेक्ट. नहीं, अदर साइड नाउ हियर, other side, lower the E0 value of a half reaction, lower the E0 value of the half reaction, correct, greater will be its tendency to occur in the reverse direction. Greater the tendency to occur in the direction, reverse direction, or the substance to oxidize. See, अगर हमारा E0 लोअर रहेगा, लोअर मतलब मैं दो एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे. सपोज फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर Fe2 plus 2 electron gives you Fe, and here the E0 value is minus 0.44 volt. And other I'll write here Zn2 plus 2 electron Zn, and E0 value is what? E0 value is what? Minus 0.76 volt. देखो मैंने यहाँ पे दो हाफ रिएक्शन लिखे, Fe2 plus 2 electron gives you Fe, ये हाफ रिएक्शन है. Zn2 plus 2 electron gives you what? Zn. ये दोनों के लिए E0 वैल्यूज. तो व्हाट आई सेड, लोअर द E0 वैल्यू. देखो अगर मैंने इनके बीच में कंपैरिजन करूंगा, कॉपर का E0 वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.337 और Fe का E0 वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस 0.44. इसका मतलब Fe का E0 वैल्यू लोअर है, निगेटिव है. Fe का E0 लोअर मतलब निगेटिव है. So lower the E0 value of the half reaction,
देन मतलब अगर E0 वैल्यू निगेटिव रहेगा, देखो Fe2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसका E0 वैल्यू निगेटिव है। अगर कोई भी हाफ रिएक्शन का E0 निगेटिव रहेगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। देखो अगर E0 वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो कंपल्सरी Ag+ will accept electron and reaction goes in the V direction forward। यहाँ पे E0 वैल्यू पॉजिटिव है मतलब कंपल्सरी कॉपर 2+ will accept 2 electron to give copper, मतलब रिएक्शन go in the V direction forward। लेकिन अगर कोई हाफ रिएक्शन के लिए हमारा E0 अगर निगेटिव रहेगा, अगर हमारा E0 निगेटिव रहेगा, इसका मतलब दिस रिएक्शन विल नॉट गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे अच्छा वो क्या प्रिफर करेगा, Fe will undergo oxidation। Fe will undergo which reaction? Oxidation। तो तुम बोलोगे फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों नहीं लिखा, रिडक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन हमें सारे इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा रिएक्शन लिखना था? रिडक्शन रिएक्शन लिखना था, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोड का हमें कौन सा पोटेंशियल प्रोवाइड किया था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, according to IUPAC nomenclature, all the electrode are written in the form of the cathode. For all the electrode, the reduction reactions are written, and all the electrode, the potential are given a which potential? Reduction potential। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन निकाली। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि अगर कोई हाफ रिएक्शन के लिए E0 अगर निगेटिव रहेगा, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि Fe will gives you what? Fe2+ + 2 electron, and that means Fe is getting oxidized। Fe is getting oxidized। So what I want to say कि अगर हमारा E0 वैल्यू अगर हायर रहेगा, then substance will undergo reduction। Okay, and if हमारा E0 वैल्यू अगर लोअर रहेगा, then लोअर मतलब निगेटिव रहेगा, then the substance will not, the reaction will not go in the forward direction, but it will go in the reverse direction। मतलब हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में? अगर कोई भी हाफ रिएक्शन के लिए E0 वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब दैट रिएक्शन विल ऑकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर हाफ रिएक्शन के लिए हमारा E0 वैल्यू नेगेटिव है, तो रिएक्शन विल नॉट ऑकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट रिएक्शन विल प्रीफर टू ऑकर इन द वी डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे देखो Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Zn। E0 वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रीफर नहीं करेगा, लेकिन क्या प्रीफर करेगा? ऑक्सीडेशन प्रीफर करेगा। मतलब रिडक्शन तो हो रहा है, but more what it will prefer? Oxidation। They will get oxidized। Okay, so I'll repeat all the point again and then I'll go for the next point। Yes, first we have seen what is electrochemical series. The electrode and their half reactions are arranged according to their decreasing standard potential are called as a electrochemical series or electromotive series। Then I have just taken the few example of the series here। Then what are the key point? The first one, all the half reaction what we write, all half reactions are always reduction। Second, half reaction के जो left side में हम species लिखेंगे, they are called as the oxidizing agent। और half reaction के right side में जिनको लिखा रहेगा उन्हें क्या बोलना हमें? They are called as the reducing agent। half side के left side वालों को क्या बोलोगे आप? Oxidizing agent। और half reaction के right side वालों को क्या बोलोगे आप? Reducing agent। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था? बिलो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड्स है, दे हैव नेगेटिव पोटेंशियल, और अबो हाइड्रोजन जो है उनका पोटेंशियल पॉजिटिव है। अबो हाइड्रोजन अगर जाओगे तो एज वी गो अपवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग, और बिलो हाइड्रोजन अगर जाओगे तो नेगेटिव पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग। थर्ड पॉइंट क्या था? गिवन E0 वैल्यू इज अप्लाइड टू द हाफ रिएक्शन दैट ऑकर इन द वी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर हमारे हाफ रिएक्शन के सामने कोई E0 वैल्यू अगर लिखा रहेगा तो E0 वैल्यू किसके लिए इंडिकेशन होगा? ओनली फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड नॉट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। एंड लास्ट, अगर कोई हाफ रिएक्शन के लिए अगर E0 वैल्यू हायर रहेगा, that means that substance has the more tendency to undergo in the V direction, forward direction, and अगर वो forward direction में जा रहा है मतलब it is getting reduced।
लेकिन अगर हमारा E0 वैल्यू अगर लोअर होगा, then that substance reaction or half reaction will not occur in the forward, but it is a tendency to occur in the v direction, reverse, and reverse means it will get oxidized. Okay, तो at least हम यहाँ पे क्या learn किया कि जिसका E0 वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, that substance will undergo reduction, correct, easily in the forward direction. और जिसका E0 वैल्यू नेगेटिव रहेगा, it will not undergo reduction but it will undergo oxidation, मतलब reaction go in the v direction, reverse direction. आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं सर. Okay. Next here, the applications of, now I'm just going for the next heading, application of इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस क्या है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन आई विल राइट हियर, फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज टू डिटरमाइन relative strength of oxidizing agent. The application of electrochemical series, what is the first one? Relative strength of the oxidizing agent, मतलब oxidizing agent. Oxidizing agent मतलब इनका कौन सा रिएक्शन होगा? अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करना रहेगा तो इसका रिएक्शन कौन सा होगा? रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा? रिडक्शन. रिडक्शन होगा, करेक्ट, वेरी गुड, रिडक्शन होगा. मतलब अगर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए. तो जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका हमें क्या कंपेयर करना है? स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. क्या कंपेयर करना है? स्ट्रेंथ. तो नाउ नॉर्मली वी नो हियर basically larger the E0 value, greater is the tendency to undergo reduction. Larger the E0 value of half reaction, और क्लियर लिखता हूं, मतलब अगर हमारे हाफ रिएक्शन का E0 वैल्यू कैसे रहेगा? लार्ज रहेगा. इसका मतलब उस हाफ रिएक्शन क्या करेगा? हाफ रिएक्शन में ग्रेटर द टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन एंड देयरफॉर it is going to become, therefore it is going to become strong oxidizing agent. तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग. जिस सब्सटेंस के लिए E0 वैल्यू बहुत हाई है, that substance will have the more tendency to undergo which reaction? Reduction. And that substance will act as a strong oxidizing agent. ये क्या act करेगा? Strong oxidizing. ये concept ध्यान में रखना. मतलब जिस हाफ रिएक्शन का E0 वैल्यू हाई है, इसका मतलब डेफिनेटली द रिएक्शन गो इन द वी डायरेक्शन, फॉरवर्ड. और अगर हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब कहाँ क्या रिएक्शन होगा? रिडक्शन. और जिस स्पीसीज का रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब वो सब्सटेंस रिडक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेलरेट, इट इज गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो व्हाट वी सी हियर, देयरफॉर the species on the left side of half reactions are
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो स्पीसीज हमारे हाफ रिएक्शन के लेफ्ट साइड में है, हाफ रिएक्शन के लेफ्ट साइड में, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट एज वी मूव डाउन, as we move down the DOWN, as we move down, the E0 value decreases, E0 value decreases, E0 value decrease होगा मतलब क्या होगा, tendency to undergo reduction decreases, and tendency to undergo reduction decreases मतलब what happens, strength of the oxygen, जो left side में oxidizing agent goes on decreasing. So as we move down the E0 value decreases, therefore tendency of substance to undergo reduction decreases, and therefore the strength of oxidizing agent decreases, okay, from top to bottom, देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? What is, see normally in the exam when they ask, आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, आपको खाली मालूम होना चाहिए कि what, अगर if they ask the question, you just write down the application of electrochemical series, then you just write down the name. The electrochemical series is used to find out what, relative strength of the oxidizing agent. लेकिन पर हमें मालूम होना चाहिए oxidizing agent मतलब what. So what is the first point we have said here? Larger the E0 value of the half reaction, मतलब अगर हमारा E0 value अगर higher रहेगा, मतलब that half reaction has a greater tendency to undergo reduction, that therefore that substance is going to become what, strong oxidizing agent. Second, what I said, the species on the left hand side of the half reaction are oxidizing agent. And third point, what I have said here, third point मैंने क्या यहाँ पर बोला है कि as we move down the group, as we move down the table or the column, E0 value decrease हो रहा है. E0 value decrease हो रहा है मतलब tendency to of the substance to undergo reduction भी क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, correct? And therefore the strength of the oxidizing agent decreases from top to bottom. So in short, अगर ये हमारा series रहेगा, देखो ये अगर हमारा series है, ये अगर हमारा series है, they all are accepting the electron, all are accepting the electron, they all are undergoing which reaction, reduction, they all are undergoing reduction मतलब they can be called as what, oxidizing agent. But अगर उनके values देखोगे तो as I go down the values are decreasing, तो values अगर decrease हो उनका oxidizing strength भी क्या हो जाएगा, decrease होगा, so their oxidizing strength also goes on decreasing. Okay, so among all who is a top oxidizing agent, fluorine, क्योंकि fluorine का standard potential सबसे highest है. Okay, so here sometimes they just ask the question, no, fluorine is powerful oxidizing agent, fluorine is powerful oxidizing agent, मतलब हमारा जो fluorine है वो powerful oxidizing agent है, वो बोलते हो क्यों? So what is the first thing, the fluorine has higher standard potential, मतलब सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में फ्लोरीन हैज अ हायर स्टैंडर्ड पोटेंशियल, देयरफॉर it has more tendency to undergo
रिडक्शन, मतलब सारे एलिमेंट के कंपैरिजन में फ्लोरीन का रिडक्शन इजीली हो जाएगा. So fluorine has higher standard potential, therefore it has a more tendency to undergo reduction, and therefore fluorine is powerful oxidizing agent. आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? तो एक सिंपल बात ध्यान में रखना, जिसका रिडक्शन रिएक्शन इजीली होगा. अभी रिडक्शन रिएक्शन इजीली किसका होगा? जिसका E0 वैल्यू लार्ज रहेगा, मतलब जिस एलिमेंट का E0 वैल्यू लार्ज है उस सब्सटेंस का रिडक्शन रिएक्शन इजीली होगा, और उस सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं. सेकेंड, हमारे हाफ रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में स्पीसीज लिखा हुआ है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. और तीसरा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप और डाउन द, मतलब यहाँ पे सीरीज में जब नीचे नीचे चले जाएंगे तो क्या हो रहा है, हमारा E0 वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. E0 वैल्यू डिक्रीज हो रहा है मतलब टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस टू अंडरगो रिडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. एंड देयरफॉर द ऑक्सीडाइज स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और ये एक रीजन है, मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो सबसे मालूम होना चाहिए कि फ्लोरीन वैल्यू वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बोलोगे कि फ्लोरीन हैज अ हायर स्टैंडर्ड पोटेंशियल, सो इट हैज अ मोर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, एंड देयरफॉर द फ्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, द फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ. नाउ आई विल गो फॉर द सेकंड एप्लीकेशन. तो इसके अपोजिट रहेगा, फोर्थ page number. And second application, what is second application? To find out relative strength of reducing agent. To find out the relative strength of reducing agent, मतलब reducing agent है उनका strength कैसे डिस्कस करोगे आप. तो सर what is the first point I can say here? I can just write down the point here. 1 minute. Larger the negative E0 वैल्यू, मतलब हमारा E0 वैल्यू कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा, और निगेटिव में भी कैसे रहेगा, लार्ज रहेगा. मतलब अगर हमारा E0 वैल्यू नेगेटिव है और निगेटिव में भी लार्ज नेगेटिव, मतलब कैसा -1 -2, तो माइनस लार्ज नेगेटिव. लार्जर द नेगेटिव E0 वैल्यू ऑफ हाफ रिएक्शन, larger the negative E0 value of the half reaction, greater is greater, or I can say little or no tendency, little or no tendency to occur in forward direction. मतलब अगर हमारा E0 वैल्यू नेगेटिव रहेगा, देन अगर हमारा E0 वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगा, then what we can say, there is, 1 minute, I'll just frame the sentence. The half reaction at the bottom one, I'll just write down.
go this way. Larger the negative E0 value of half reaction, then little or no tendency to occur in the forward direction. मतलब reaction forward direction में नहीं जाएगा, but it will favor reverse direction. मतलब अगर कोई भी हाफ रिएक्शन के लिए हमारा E0 वैल्यू अगर निगेटिव रहेगा, एंड वो भी कैसे रहेगा, लार्ज रहेगा, so larger the negative E0 value of the half reaction, then that half reaction has a little or no tendency to occur in the, मतलब वो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, और अगर गया भी तो भी कैसा रहेगा, लिटिल रहेगा, लिटिल टेंडेंसी. बट इससे अच्छा वो क्या प्रीफर करेगा, बट इट विल प्रीफर टू फेवर इन द रिवर्स डायरेक्शन. मतलब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन होगा. ओके, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर एग्जाम्पल अगर Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn और इसका E0 वैल्यू है -0.44 वोल्ट, और लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिथियम है, तो उसका E0 वैल्यू कितना आएगा, इसका E0 वैल्यू आएगा -0. एक एग्जाम्पल लिखा था, -3.045 वोल्ट. ओके, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है कि अगर मतलब देखो इसका निगेटिव वैल्यू बहुत हाई है, इस हाफ रिएक्शन के लिए निगेटिव वैल्यू बहुत हायर है. सो लार्जर द निगेटिव E0 वैल्यू ऑफ द हाफ रिएक्शन, देन लिटिल और नो टेंडेंसी टू ऑकर इन द फॉर्म. ये रिएक्शन जो हमारा फॉरवर्ड में डायरेक्शन जाएगा ही नहीं, मतलब लिथियम इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं. इससे क्या होगा, इट विल फेवर विच रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन. रिवर्स डायरेक्शन मीन्स व्हाट, therefore substance will undergo oxidation, and it will act as reducing agent. It will act as reducing, मतलब लिथियम Li+1 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा. इससे अच्छा क्या होगा, Li will give what, Li++ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिवर्स रिएक्शन होगा. मतलब लिथियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो लिथियम undergoes oxidation and therefore it will act as a reducing agent. So next point you can say, therefore we can say, as we go down the series, the negative E0 value increases. As we go down the series, क्या हो रहा है, negative E0 value increases, therefore tendency to, अगर निगेटिव वैल्यू बढ़ेगा मतलब रिडक्शन नहीं होगा, तो therefore tendency to undergo oxidation increases, and therefore strength of oxidizing agent increases from top to bottom. आ रहा है समझ में? देखो आई रिपीट हियर. देखो हमें रिड्यूसिंग एजेंट कैसे डिसाइड करना है. तो सबसे पहले लार्जर द नेगेटिव E0 वैल्यू ऑफ द हाफ रिएक्शन, मतलब अगर हमारे हाफ रिएक्शन का E0 वैल्यू कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा, लार्ज निगेटिव रहेगा, देन
there is little or no tendency to occur in the forward direction. Then there is little or no tendency to occur in the forward direction, but it will favor which direction? Reverse. Reverse means oxidation होगा. The substance will undergo which reaction? Oxidation. And जिसका oxidation होगा वो क्या add करेगा? Reducing agent. तो इसीलिए generalize क्या लिखेंगे हम लोग कि as we go down the series, the negative E0 value increases, so tendency to undergo oxidation increases, and therefore strength of the oxidizing agent increases from top to bottom. So what we have studied, when I go from top to bottom, reducing strength goes on decreasing, and when I go from top to bottom, oxidizing strength goes on increasing. And they always ask the questions over here that, you know, lithium is strong oxidizing agent. Lithium is strong oxidizing agent. मतलब lithium जो हमारा है वो strong oxidizing agent है. क्यों? वो बोल दो. So what is the reason? First we can say here lithium has more negative E0 value. Lithium has a more negative E0 value. It has more tendency to undergo oxidation. Therefore, it is strong reducing agent. तो नॉर्मली क्या ध्यान में रखना है कि जो एलिमेंट सीरीज के टॉप में है, जो एलिमेंट हमारे सीरीज के टॉप में है, दे आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो एलिमेंट सीरीज के बॉटम में दे आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. तो जो टॉप में है दे आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो एरो ऊपर आ रहा है, एंड जो बॉटम में है दे आर stronger reducing agent. Okay, here. Okay, so I'll just revise this point and then I'll go for the next one. देखो क्या पॉइंट मैंने बोल दिया था यहाँ पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब अगर हमारा हाफ सेल के लिए E0 वैल्यू अगर हायर रहेगा, E0 वैल्यू अगर हायर रहेगा तो सब्सटेंस विल अंडरगो व्हिच रिएक्शन? रिडक्शन. मतलब will act as a which agent? Oxidizing agent. So all the species on the left side of the half reaction are called as oxidizing agent. So as we move down the series, यहाँ पे लिखना, as we move down the series, हमारा electrochemical series, as we move down the series, E0 values decreases, and therefore tendency of the substance to undergo reduction also decreases, and therefore strength of the oxidizing agent decreases from top to bottom. Okay. Similarly, यहाँ पे क्या देखा था? Larger the negative E0 value of the half reaction, then there is a little or no tendency to occur in the forward direction. मतलब reaction forward direction में नहीं होगा, but it will favor in the which direction? Reverse direction. तो इसीलिए substance will reverse मतलब क्या होगा? Oxidation होगा. The substance will undergo which reaction? Oxidation reaction, and it will act as the reducing agent. So as we go down the series, the negative E0 value increases, so tendency to undergo oxidation increases, and therefore strength of the oxidizing agent increases from top to bottom. And sometime they may ask you a question, fluorine is a powerful oxidizing agent and lithium is a powerful reducing agent. Explain why. I'll repeat the question. Fluorine is a powerful oxidizing agent. So fluorine powerful oxidizing agent क्यों है? Because fluorine has a higher standard potential. Fluorine has a more tendency to undergo reduction, and therefore fluorine is a powerful oxidizing agent. और lithium reducing agent क्यों है? Because lithium has a more negative E0 value, and it has a more tendency to undergo oxidation,
and therefore it is a strong reducing agent. Okay, तो ये हमारा concept हुआ और applications है, but that I will do it in the next lecture. So I'll just stop it over here. So in the next lecture हमारा ये chapter complete हो जाएगा, and then we will start with maybe chemical kinetics. Okay, एक minute.